बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे नायब वजीर आजम इसहाक डार की 29वीं ECO वज़राए खारजा कौंसिल के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा ECO वज़राए खारजा कौंसिल का इजलास तंजीम को मजबूत बनाने में मददगार होगा। पाकिस्तान ECO ममालिक के साथ ट्रांसपोर्ट रवाबित को फरोग दे रहा है। इजलास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मुश्तरका चैलेंजेस दरपेश हैं। मुश्तरका तरक्की के लिए ECO ममालिक के दरमियान रवाबित को फरोग नागुज़ीर है। पाकिस्तान इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर की जल्द तकमील के लिए पुरअज़्म है। I would like to congratulate my dear brother Yamak Koshebayov, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, on assuming the office of Foreign Minister and for successful hosting of the 29th ECO Council of Minister meeting. We appreciate the role played by Kazakhstan in steering the ECO during its chairmanship. I also wish to laud the efforts of my dear brother Sayyid Abbas Araghchi, Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran, the outgoing chair as well as the ECO Secretary General for their role in further strengthening the ECO. Excellencies, this meeting takes place amid rapidly changing global and regional geopolitical developments as well as technological advancements that are impacting regional cooperation. In today's uncertain world, it is more important than ever before to collectively address common challenges, bridge the economic divide, and unlock the potential for shared prosperity. Accordingly, we need to further solidify ECO, enabling it to meet its objectives. The ECO region offers enormous opportunities with a vast, contiguous geographical area and abundant natural resources for integration of trade and economic systems. Mr. Chairman, Excellencies, as a founding member, Pakistan sees ECO as a useful platform to further reinforce ties among the members through multilateral engagements. In pursuit of the ECO Vision 2025, Pakistan remains steadfast in its efforts to advance the goals of regional connectivity through integrated and efficient transport corridors. We believe that the focus of the 29th ECO Council of Ministers advancing regional transport connectivity and sustainable development is both timely and consistent with the ECO vision. और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली हुकूमत अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार। अपोजिशन के सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में कहा कि हमारा सियासत से बड़ा आपस में भाईचारे और रवादारी का रिश्ता है। 2014 से आप भाइयों से राब्ते में हूँ। सियासत सारी उम्र नहीं रहती, ये ख़त्म हो जाती है, लेकिन अरकान असम्बली का ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो सारी ज़िंदगी कायम रहे। मामलात की बेहतरी के लिए PTI रवैया ठीक करे, पार्लिमानी कमेटियों का हिस्सा बने। अपोजिशन की जानिब से ताउन नहीं मिल रहा है। मैंने हर मौके पर मुज़ाकरात की बात की है। मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। मजीद आपको बताएंगे वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की PTI की सियासी हिकमत अमली और रवैये पर शदीद तनकीद। एक्स में पैगाम में कहा तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन बयानिया तुर्क करके रियासत और अवाम का मफाद मुकद्दम रखे। KP हुकूमत की तरजीहात अमन तरक्की और अवामी रिलीफ के बजाय इसी गैर कानूनी बयानिया के गिर्द घूमती रहें। अब वक्त आ गया है कि PTI मुल्क दुश्मन बयानिया तर्क करके रियासत और अवाम के मफाद को अवलीन तरजीह दे। और अब खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला है, मैं आपसे नहीं मिल सकता। हमने फैसला किया है आज ना कौमी असम्बली में ना सेनेट का इजलास चलने देंगे। सूबे की गवर्नेंस पर मैं अपनी इंतजामिया से राब्ते में हूँ। मैं पैराशूट के जरिए नहीं आया, मैं तंजीम में काम के बाद निचली सतह से ऊपर आया हूँ।
اور اب خبر شامل کریں گے 28ویں ترمیم کے حوالے سے. آپ کو بتائیں گے 28ویں ترمیم میں کیا کیا شامل ہے. پی ٹی آئی کے رہنما بابر اعوان نے پیشین گوئی کر دی. کہتے ہیں ملک میں 12 نئے صوبے بنائے جائیں گے. سندھ میں 3 نئے صوبے ہوں گے. ایک کا نام ہوگا کراچی، دوسرے کا سندھ اور تیسرے کا نام مہران ہوگا. اب آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارہ سول رجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم موبائل ایپ اور MOU سائن کی تقریب. ڈی جی نادرا کی سربراہی میں 9 رکنی وفد شریک ہوا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب. کہا CRMC موبائل ایپ کا اجرا شہری خدمات کی جدیدیت کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے. کاغذی نظام سے اسمارٹ ٹیکنالوجی بیسڈ گورننس کی طرف تیزی سے سفر جاری ہے. موبائل ایپ کے ذریعے پیدائش، موت، نکاح و طلاق کے گھر بیٹھے رجسٹریشن ممکن ہوگی. قطاروں، تاخیر، کاغذی کارروائی اور فضول چکروں سے چھٹکارا ممکن ہوگا. ایپ کو گاڑی رجسٹریشن اور اسلحہ لائسنس کی ڈیجیٹل پلیٹ فارم تک بڑھایا جائے گا. The best of systems, but we need the best of people on ground to implement that system. تو اس سلسلے میں اور سملرلی اس لیے کہ زیادہ تر آئی ہوپ 100% ہو جائے کہ ہماری جو برتھس ہوتی ہیں وہ ایک اسپتال میں ہو، چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو، چاہے وہ گورنمنٹ آپریٹڈ ہاسپٹل ہو. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ انشور کرنا ہے کہ وہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو وہ رجسٹر ہو جائے. اور جیسے میں نے کہا ونس وی ہیو دیٹ سسٹم ہماری پلاننگ آسان ہو جائے گی اور ہم اس ملک کے لوگوں کو پراپرلی سرو کر سکیں گے. تو ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں نادرا کا، اور آئی ووڈ لائک ٹو آلسو کمینڈ دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، دی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جنہوں نے مل کے یہ کام کیا ہے. چیف سیکرٹری صاحب جو اس کو خود دیکھ رہے تھے اور اسپیئرٹ کر رہے تھے. ابھی سسٹم آ گیا ہے، اب اس کا فائدہ اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. سو انشاءاللہ تعالی ود دس انیشیٹو ہم، جیسے ابھی آپ نے بات کی، ہم ڈیجیٹائزیشن صرف یہاں نہیں کر رہے، ہم نے بہت پلانز ہیں. جیسے آپ نے بتایا وہیکل رجسٹریشن، آرمز رجسٹریشن، آپ کی لوکل گورنمنٹ کے اندر ڈومسائل وغیرہ یا جو پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہماری سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ میں ہمیں ڈیجیٹائزیشن کی بہت ضرورت ہے. ان سب چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ پہلے جو چیز ہم میں سالوں لگ جاتے تھے کرنے میں، اب ہم دنوں میں وہ چیز کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم حکومت سندھ پوری کوشش کرے گی کہ ہم آپ کے پیس پہ کام کر سکیں اور یہ ساری چیزیں ہم کمپلیٹ کر سکیں. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ موقع دیکھتے ہوئے سندھ کے لوگوں کو یہ ایک پیغام دیتا ہوں کہ اس موبائل اپلیکیشن جو آج بنی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال 100% استعمال کریں. اس لیے کہ اگین 3 لوگ ہیں، ایک تو آپ کے پاس پلیٹ فارم بن گیا ہے، آپ کے پاس حکومت کے لوگ ہیں جو لے جائیں، لیکن الٹیمیٹلی جو اس کے یوزرز ہیں، جو سٹیزنز ہیں، وہ اگر اپنی برتھ، میرجز، ڈیفورسز اور ڈیتھ رجسٹر نہیں کرائیں گے تو یہ ساری چیز بیکار ہو جائے گی. اور اب بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے 2 ٹوک اعلان کے حوالے سے. انہوں نے کہا ٹریفک پولیس کو آخری چانس، اگلا موقع نہیں ملے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا ہر چیز ٹھیک کر دی مگر ٹریفک کا برا حال ہے. ٹریفک پولیس کے پاس آخری موقع ہے، نہ کر سکے تو نیا ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا. سرکاری گاڑی قانون سے بالاتر نہیں، قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی سرکاری گاڑیوں کو بھی بھاری جرمانہ ہوگا. ون وے کی خلاف ورزی ختم کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت دی. کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ ختم کرنے کے لیے سخت فیصلہ کن کریک ڈاؤن ہوگا. انڈر ایج ڈرائیونگ کی صورت میں گاڑی مالک کو 6 ماہ تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. 5 ماڈل سڑکوں پر چنگچی رکشوں پر مکمل پابندی عائد کر دی. اور اب خبر شامل کریں گے اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا. قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کی چالان سے متعلق گفتگو. کہا کراچی میں ای چالان کی وجہ سے شہری پریشان ہے، چالان کی رقم کم کی جائے. سکھر میں ای چالان کے کیمرے کیوں نہیں لگائے گئے ہیں، شہریوں کے ساتھ زیادتی بند کی جائے. وزیر داخلہ ضیاء الحسن ننجار کا جواب. کہا کراچی میں ٹریفک نظام بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر کو اس اقدام کو سراہنا چاہیے تھا. پہلے چالان پر رقم نہیں لے رہے تھے مگر دوسری خلاف ورزی پر ڈبل جرمانہ ہوگا. کمیٹی میں پولیس افسران کو بلا لیتا ہوں، اپوزیشن نام دے، اس پر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں.
مہذب معاشروں میں یہ والی چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹو ہیو اے چیک اینڈ بیلنس. جو وہاں پہ ٹریفک قوانین چل رہے ہیں اس پہ عملداری کے لیے جو ہے اپنا کردار ادا کرتی ہے حکومت. مگر بدقسمتی کے ساتھ اس شہر کراچی کی اگر میں بات کروں تو اس شہر کراچی میں جب یہ کام کیا گیا اور یہ پائلٹ انٹروڈیوس کیا گیا, یہ پروجیکٹ لگایا گیا, تو شاید ہمیں لگتا ہے کہ اس میں اجلت کی گئی. اور اجلت کا میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس شہر کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ ڈیٹیریٹ کر رہا ہے, خراب ہو رہا ہے. جہاں پہ یہ کام کیا گیا حکومت یہ کہتی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ روڈ بھی ٹھیک ہے, وہاں سگنل بھی ٹھیک چل رہے ہیں. تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے جو سب سے الارمنگ ہے ان شہریوں کے لیے, وہ یہ کہ جو پینلٹیز لگائی گئی ہیں وہ پینلٹیز کسی طور جو ہے وہ ایک عام, دیکھیں 40-45 لاکھ بائکس چل رہی ہیں اس شہر میں. یہ جو بائکس پہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اسپیکر صاحب, وہ کوئی لاکھوں نہیں کما رہے ہوتے, 5 لاکھ 10 لاکھ نہیں کما رہے ہوتے. ان کی اگر ایوریج سیلری دیکھی جائے گی تو وہ 40 سے 60-70 ہزار کے لگ بھگ ہوگی. میری گزارش صرف اتنی سی ہے, ہم نے میری جماعت نے اس ایشو کو لے کے اس کو پولیٹیسائز نہیں کیا. ہم نے شہر بھر میں بینر نہیں لگایا کہ ہمیں یہ چالان نامنظور ہے. ہماری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ اس چالان میں جو پینلٹیز لگائی گئی ہیں, دیکھیں لوگوں کو جس اسپیکر صاحب جس بائک والے کے پاس مڈ گارڈ یا چین کور لگانے کے پیسے نہیں, اس کو 5-5 ہزار روپے کا چالان پڑے گا. تو حکومت ڈرا دھمکا کے یہ والا کام کرنا چاہ رہی ہے, ایسا نہ کرے. آپ نے اس کو سینسٹائز کرنا تھا, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا, وہ ہماری دانش کے مطابق شاید اس انداز سے نہیں کیا. حکومت نے اجلت کا مظاہرہ کیا. تو میری گزارش ہوگی, دیکھیں پارلیمان سپریم ہے, اور یہ جو پینلٹیز والا جو شیڈیول ہے 12 شیڈیول میں امینڈمنٹ کی تھی, وہ ایک آئی جی لیول پہ ویسے اس ایکٹ میں ہم نے امینڈمنٹ کر کے رکھا ہوا ہے. میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ پارلیمان میں تمام ہی جماعتوں کے نمائندوں کو اس کو آن بورڈ لے کے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کی جائے, تاکہ اس پہ یہ جو ریشنلائز کیا جائے. یہ بہت زیادہ ہے چالان, 25-25 ہزار روپے کا چالان ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں ہونا چاہیے, مگر خدارا جو کام حکومت کو پہلے کرنا چاہیے تھا اس پروجیکٹ سے وہ شاید نہیں کر سکی ہے. تو میری گزارش ہوگی, وزیر موصوف موجود ہے, یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات کہ آج کی تاریخ تک میری اطلاع کے مطابق شاید 71 کروڑ روپے کا چالان ہو چکا ہے شہریوں کے ساتھ. اور اب خبر شامل کریں گے ای چالان کے حوالے سے. آپ کو بتائیں گے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چالان کے اجرا کا معاملہ. سندھ ہائی کورٹ میں موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم اور ای چالان کے خلاف درخواست کی سماعت. درخواست گزار کے مطابق شہر میں سڑکوں کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے, ٹریفک سگنلز بھی مکمل طور پر فعال نہیں ہیں. اب تک 93,000 سے زائد ای چالان جاری کیے جا چکے ہیں. سندھ حکومت کے مطابق ای چالان کے جرمانے کا نوٹیفیکیشن گیزٹ میں شائع نہیں ہوا. گیزٹ میں شائع نہ ہونے کے باعث 2023 کے منظور شدہ جرمانے ہی نافذ ہوں گے. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. سماعت 11 دسمبر تک ملتوی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے فہیم سیلرا سے. جی فہیم, آگاہ کیجیے گا. جی ہاں بالکل, آج سندھ ہائی کورٹ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چالان کے اجرا کے معاملہ اور موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم اور ای چالان کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی ہے. دوران سماعت وکیل درخواست گزار یا طارق منصور ایڈوکیٹ کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شہر میں سڑکوں کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. شہر میں ٹریفک سگنلز بھی مکمل طور پر فعال نہیں ہے. اب تک 93,000 سے زائد ای چالان جاری کیے جا چکے ہیں. سندھ حکومت کے مطابق ای چالان کے جرمانے کا نوٹیفیکیشن گزٹ میں شائع نہیں ہوا اور گزٹ میں شائع نہ ہونے کے بعد 2023 کے منظور شدہ جرمانے ہی نافذ ہوں گے. درخواست گزار کا یہ کہنا ہے کہ ای چالان کے ذریعے کیے جانے والے بھاری جرمانے غیر قانونی ہیں, ان کو جو ہے لہٰذا کر عدم قرار دیا جائے, جس پر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے. اور عدالت نے درخواست کو اسی نوع یا دیگر درخواستوں کے ساتھ منسلک کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے, اور عدالت نے درخواست کی مزید سماعت 11 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے. جی شکریہ فہیم, تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور اب افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے. گارڈن میں ڈمپر کی ٹکر سے شہری کی ہلاکت کے موقع پر ہنگامہ آرائی کا معاملہ ہوا ہے. ملزم لیاقت محسود کے خلاف قانونی گھیرا تنگ. عدالتی حکم پر لیاقت محسود کے خلاف ایس پی ساؤتھ کے مقدمات میں ATA اور اقدام قتل کی دفعہ شامل کرنے کی ہدایت. ملزم کے خلاف ATA کی دفعہ شامل کر کے زیر دفعہ 173 کی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے. ایس پی کی تفتیشی افسر کو ہدایت.
दूसरी जानिब बात करेंगे और आपको बताएंगे नवंबर में नीला आसमान नजर आना कामयाब पॉलिसियों का सबूत है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मोग इस साल कम तरीन सतह पर है। गोजरावाला और फैसलाबाद की सिम से मामूली आलूदगी का इम्कान है। फसलें जलाने की बजाय ट्रोली को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने का रुझान तरतीब दिया गया। हुकूमत की मुसलसल निगरानी से मजमूई फजाई हालात मुस्तहकम है। स्मोक स्क्वाड्स की रोजाना कार्रवाइयां जारी हैं। फसलों की बाकियात जलाने पर जुर्माने किए जा रहे हैं। और अब आपको बताएंगे पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत, दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फाल करार दे दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि ताजिकिस्तान चीन और मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी है। चीनी और ताजिक अवाम के दुख को पाकिस्तान पूरी तरह समझता है। पाकिस्तान भी अफगानी सरजमी से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह होती है। अफगान सरजमीन अपने पड़ोसियों या किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और अब खबर शामिल करेंगे वाशिंगटन में होने वाले हमले के हवाले से। आपको बताते चलें वाशिंगटन हमले में जख्मी होने वाली खातून गार्ड दम तोड़ गई। शनाख्त 20 साल सहारा के नाम से हुई। 24 साल के एंड्रयू वुल्फ की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका में गैर कानूनी तौर पर आने वाले अफराद मुश्किलात पैदा करते हैं। नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाले की हालत तशवीशनाक है। हुकाम से गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक तफसीली बात की। हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की व्हाइट हाउस हमले की मजम्मत सर उठाने वाली दहशतगर्दी के खतरे का सबूत करार दे दिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान अमरीका में पेश आने वाले वाक़े में मुबैना तौर पर अफगान शहरी मुलव्विस था। मकतूल गार्ड्स के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार करते हैं। जख्मी होने वाले अफराद की सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। पाकिस्तान की हमदर्दी मुतासरा खानदानों और अमरीका के साथ है। यह हमला अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी की एक घिनाउ साजिश है। दूसरी जानिब बात करेंगे और आपको बताएंगे वादी तीरा के हवाले से। वादी तीरा में ख्वारिज की बढ़ती हुई दहशतगर्दाना सरगर्मियों ने पेशावर के लिए खतरे की घंटी बजा दी। जराये के मुताबिक फितनल ख्वारिज ने एक बार फिर वादी तीरा के नेटवर्क से जरिए पेशावर पर दहशतगर्दाना हमले शुरू कर दिए। तीरा और पेशावर का दरमियानी फासला तकरीबन 70 किलोमीटर और सफर का वक्त सिर्फ 2 घंटे है। माजी में खारजी हकीमुल्लाह महसूद का मरकज तवील अरसे तक तीरा में कायम रहा। हालिया मुतादिद हमलों में मुलव्विस अफगान शहरी के रवाबित भी तीरा में कायम नेटवर्क से मुंसलिक पाए गए। मनशियात के कारोबार से जुड़ने अंदरूनी मफादात में इसी खत्ते में खुलकर सामने आ रहे हैं। और अब खबर शामिल करेंगे सिक्योरिटी के नाम पर अफगान तालिबान का दहशतगर्दों की पुश्त पनाही और माली मुआवनत का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। 2025 में तालिबान के बजट का निसफ हिस्सा नाम नेहाद सिक्योरिटी पर खर्च। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के माली साल के पहले 7 माह में तकरीबन 39% यानी 75.6 अरब डॉलर की मालियत अफगानी तालिबान इंतजामिया की सिक्योरिटी पर खर्च हुए। सिक्योरिटी के बहाने अफगान अवाम पर जुल्म, तशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों का तसलसल तालिबान की पहचान है। अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान में मजमूई हुकूमती अखराजात 24.3 अरब तक पहुंच गए हैं। और अब बात करेंगे खुसूसी निशस्त के हवाले से। आपको बताएंगे स्कर्दू में कमांडर FCNA की नौजवानों और एकेडमी के तलबा के साथ खुसूसी निशस्त। कमांडर ने शुरा को खित्ते के अमन एमान, कौमी सलामती और गिलगित बल्तिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत से आगाह किया। खिताब में कहा गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के बेशुमार मौके मौजूद हैं जिससे नौजवान मुस्तफीद हो सकते हैं। नौजवान रियासत का मुस्तकबिल है, इसलिए कयाम अमन और समाजी हम आहंगी के फरोग में भरपूर किरदार अदा करें।
कन्फ्लिक्ट या जो प्रॉब्लम्स थे उस हवाले से हमें अपडेट दी गई और इन चीज़ों के मुतालिक फिर स्टूडेंट्स, यूथ और जो एकेडमिया, जो डिफरेंट टीचर्स थे, उनकी तरफ से जो क्वेश्चंस आए उनका उन्होंने तफसीली जवाब दिया। और इस तरह के इंटरेक्शन से, सेशन की वजह से बच्चों के अंदर जो शऊर पैदा होती है, तो ये चीज़ें, इस तरह के सेशंस हर साल होनी चाहिए। काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, बहुत अच्छा, ये फ्रूटफुल रहे। इस तरह के सेशन से ये फ़ायदा होता है कि हमारे जहन में जो इल्हामात है उनके जवाब हमें मिल जाते हैं। और जो करंट जो जंग हुई थी इंडिया के साथ, उसके बारे में बुनियाद महसूस जो कहते हैं, उसके हवाले से उन्होंने फ़ौज की खिदमत को ये बहुत सारा और हमें नई नई मालूमात भी दी। और हमारे जहन में जो एक तस्वुर था फ़ौज के हवाले से वो गलत था और उन्होंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी, तो हमें पता चला कि हमारी फ़ौज जो है मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। और साथ साथ इस तरह के इवेंट्स बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और एकेडमिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसके ज़रिए उनके अंदर जो है हुब्बुल वतनी और पाकिस्तान से मोहब्बत और अपने इलाके के लिए कुछ करने के लिए उनका जज्बा पैदा होता है। वफाकी वजीर अता तारा की मीडिया से गुफ्तगू, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वही हुकूमत जो है वो धरने देने पे उसकी तमाम तर तवज्जो मरकूज है और जितने घंटे धरने में दिए जाते हैं वही घंटे लग सकते थे तालीम को बेहतर करने के लिए, सेहत के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, सड़कों के निज़ाम को बेहतर करने के लिए और मुल्क के सूबे के अंदर अच्छी पॉलिसियां बनाने के लिए। वो टाइम ज़ाया हो रहा है धरनों के अंदर। और देखिए बात यह है कि वज़ारत आला का जो मनसब है ये बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है और वज़ारत आला के मनसब पर बैठने वाला शख्स अगर सूबे में ना रहे और ज़्यादा टाइम जेल की दीवार के बाहर खड़ा हो तो सूबे की तामीर और तरक्की पर कौन तवज्जो देगा और सूबे की तामीर और तरक्की कैसे होगी। इंतहाई मैं समझता हूँ कि उनका रवैया काबिल मज़म्मत भी है, अफसोसनाक भी है और इसके साथ साथ उनकी डिमांड है क्या। यानी आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो दें और लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो के साथ साथ आप देखें कि जो दहशत गर्दों का मुकाबला है, वफाकी हुकूमत ने कहा कि हम मिलके काम करते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ, अमन अमान कायम करने के लिए, लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए, मगर उस तरफ तवज्जो नहीं है। जो जिस तरह मैंने कहा कि जो वक्त सर्फ होना था अमन अमान की तरफ, दहशत गर्दों के मुकाबले में, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, सेहत के ऊपर, सोशल सर्विसेज के ऊपर, तालीम के ऊपर, वो धरने में। और धरने में एक इलीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। बात करना बहुत आसान है, आप कोई दरखास्त लाए जिसके ऊपर आपने दर्ज किया हो कि जेल मैनुअल या जेल के जो रूल्स हैं या जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो आपको इजाजत देता है इस मुलाकात की। एक गैर कानूनी डिमांड बार बार रखी जा रही है। आप अपनी सूबे की खिदमत करें, तालीम पे फोकस करें, हेल्थ पे फोकस करें, लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करें, इस सूबे के अवाम की भलाई के लिए काम करें, सूबे की अवाम की फलाह के लिए आप काम करें, मगर वो आपको तौफीक नहीं है। आप 4-4 घंटे धरना देते हैं। ये बेसिकली टिकटॉक हुकूमत है। ये लाइक्स के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, आने जाने के लिए, चलने फिरने के लिए ये काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कभी चप्पल का नाप दे रहे होंगे, कभी तस्वीर साफ कर रहे होंगे। वजीर आला वाला एक काम भी ये नहीं कर रहे जिनको करना चाहिए था कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करते और तमाम तर जो निज़ाम है सूबे के अंदर उसको ठीक करते, जदीद अपनी तालीम देते, बच्चों को लैपटॉप्स बांटते, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देते। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए बहुत अफसोसनाक है कि एक गैर कानूनी डिमांड रखी कि जी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई आपका लीडर कोई मुल्क के लिए काम उसने किया नहीं किया। और जब वो वजीर आजम था इकॉनमी तो उसने डबोई पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया में खराब किए। अब आप आ रहे हैं जी मुलाकात कराएं। भाई क्यों कराएं? आपकी लीगल इसके अंदर राइट क्या है? ये हमेशा आधा काम करते हैं। ये कभी अपील, जब अपील में जाते हैं केस इनका तैयार नहीं होता। 190 मिलियन पाउंड का जब पूछा गया कि जी ये 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला गया है जिसमें ये इमरान अहमद न्याजी सजा याफ्ता है, तो जवाब दें। जवाब क्या आता है आगे से कि जी हम रियासत मदीना का नाम लेते थे, हमें सजा मिली है। मजहब को इस्तेमाल करना छोड़ दें सियासत के लिए। आपने इतना बड़ा डाका डाला अलकादर यूनिवर्सिटी का 190 मिलियन पाउंड का, उसमें सजा याफ्ता शख्स है, जेल के अंदर है। और जेल भी अब ये इंडिया से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अफगानिस्तान से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनके लोग इंडियन मीडिया को फीड करें। आज इंडियन मीडिया के ऊपर टॉप खबर जो है इमरान खान की जेल है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया सेंसिबल है, उनको पता है कि अंदर ट्रेडमिल भी मिली हुई है,
अंदर एक्सरसाइज भी है, जिम इक्विपमेंट भी है, वॉकिंग गैलरी भी है, खाना भी जो मेन्यू देते हैं वो मिलता है। एक शहाना जिंदगी 5 स्टार होटल वाली गुजार रहे हैं। वीवीआईपी कैदी है। किसी सियासी, मैं दावे से कहता हूं, किसी पाकिस्तान की तारीख में सियासी कैदी को इतनी सहूलियात मुयसर नहीं हुई जितनी इमरान अहमद न्याजी को मुयसर हैं। और फिर इनकी इलीगल डिमांड है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि ये गैर कानूनी डिमांड है आपकी। आपके पास जेल मैनुअल के अंदर, कानून के अंदर, रूल्स के अंदर कहां पे गुंजाइश है कि आप मुलाकात करेंगे तो सूबे के मामलात को चलाएंगे? लोगों पे तवज्जो दें, लोगों की फलाह बहबूद पे तवज्जो दें। और देखिए, इनकी पार्टी की एक रहनुमा है जिन्होंने मुबैना तौर पे इंडिया के मीडिया को और अफगानिस्तान की मीडिया को एक्टिव किया है और अफवाहें फैलाई हैं। अभी भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक दुश्मन जर्नलिस्ट है, उसने भी ट्वीट किया। और इंडियन मीडिया इस वक्त इमरान खान का मीडिया मैनेजर बन के उनकी कैंपेन चला रहा है, अफगानिस्तान का मीडिया कैंपेन चला रहा है। ये सारी जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनके हथकंडे हैं प्रेशर डालने के और मुलाकात हासिल करने के। मुल्क में कानून है, एक आइन है, जो होगा कानून और आइन के मुताबिक होगा। आपकी मंशा पे ही नहीं हो सकता कि आपने आज ये सोचा कि हमारी मुलाकात कराई जाए तो मुलाकात हो जाए। कि आज 190 मिलियन पाउंड तक कोई जवाब नहीं किसी चीज का, और अब ये कहते हैं कि ये सियासी कैदी है। सियासी कैदी ऐसे होते हैं जिन्होंने इतना बड़ा डाका डाला इस मुल्क के अंदर, और आप वहां बैठ के धरने दें। और ये बुजदार हम समझते थे कि एक नाहल वजीर आला था पंजाब का, मगर इन्होंने इसको वजीर आला लगा के सोहेल खान को वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, क्योंकि ये बुजदार का भी प्लस 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 निकला है। और ये गैर कानूनी डिमांड करके तो एक पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं खेलने देंगे। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अगर आप समझते हैं कि आप इंडिया के थ्रू, इंडियन मीडिया के थ्रू, अब इंडियन मीडिया कॉल कर रहा है पाकिस्तान के लोगों को कि जी आए हैं इस पे बात करें इमरान खान के ऊपर, अब ये इंडियन मीडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके लिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये सियासत, ये ओहदे, ये वजारतें, ये सब कुछ कारोबार, हर चीज पाकिस्तान के मरहून मिन्नत है। और आपने क्योंकि कहा कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ऐसे नारे के ऊपर आपको शर्म आनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि जान भी हाजिर है पाकिस्तान पे, जान कुर्बान है पाकिस्तान के ऊपर। आप इंडियन मीडिया इस्तेमाल करें, अफगानिस्तान का करें, आप जो मर्जी कर लें, आपकी डिमांड गैर कानूनी है और उस पर अमल नहीं किया जा सकता। पाक के वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं जो कानून है केपीके की हुकूमत अवाम की फलाह के बजाय दूसरे चीजों पर तवज्जो दे रही है। अगर ये धरने देते रहे तो सूबे पर कौन देगा? केपीके हुकूमत का अव्वलीन मसले अमन व अमान और दहशतगर्दी के खात्मे पर है। केपीके हुकूमत ने गवर्नेंस, नई सड़कों के बजाय एहतजाज पर तवज्जो मरकूज रखी है। केपीके की हुकूमत गैर कानूनी मुतालबा कर रही है। अहम खबर से आगाह करेंगे और आपको बताएंगे, सोल्जा बाजार की कौमी वर्सा इमारत जुज़वी मुनहदिम। मुतालिका इमारत को जून 2025 में सील किया गया था। कायमा कमेटी बराए सकाफत और तारीखी के इमारात के चेयरमैन आमिर सिद्दीकी का IG सिंध को खत। सील की गई तारीखी इमारतों में कैसे तोड़फोड़ की गई? SHO सोल्जा बाजार ने 9 और 10 मुहर्रम को तारीखी इमारत को जुज़वी मुनहदिम किया था। वाक़े की तहकीकात करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौमी वर्सा करार दी जाने वाली इमारत को बचाया जाए। आमिर सिद्दीकी का खत। आपको बताते चलें, सोल्जा बाजार की कौमी वर्सा इमारत जुज़वी मुनहदिम। मुतालिका इमारत को जून 2025 में सील किया गया था। कायमा कमेटी बराए सकाफत और तारीखी के इमारात के चेयरमैन आमिर सिद्दीकी का IG सिंध को खत। सील की गई तारीखी इमारत को कैसे तोड़फोड़ की गई? बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने FIA के अफसरान वापस कर दिए। साइबर क्राइम के कंट्रेक्चुअल मुलाजमीन पहले ही काम नहीं कर रहे। सैकड़ों दरख्वास्तें इल्तिवा का शिकार हैं। ऑर्डर में सेनेटर फलकनाज के केस में रकम रिकवर करने वाले अहम इंस्पेक्टर का नाम भी लिस्ट में शामिल है। इंस्पेक्टर अशीर आरून, राना जहाजेब, नोमानुल हक, रिजवान भट्टी समेत मुतादिद एहलकार वापस FIA भेज दिए गए। आपको बताते चले, लाहौर सर्कल के 3 अफसरान और 1 LDC भी वापस फहरिस्त में शामिल। आपको बताते चले, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने FIA के अफसरान वापस कर दिए। साइबर क्राइम के कंट्रोलेक्चुअल
मुलाजमीन पहले ही काम नहीं कर रहे, सैकड़ों दरखास्तें इल्तिवा का शिकार हैं। ऑर्डर में सेनेटर फलकनाज के केस में रकम रिकवर करने वाले अहम इंस्पेक्टर का नाम भी लिस्ट में शामिल। इंस्पेक्टर अशीर हारून, राना जहांजेब, नौमानुल हक, रिजवान भट्टी समेत मुतादिद एहलकार वापस FIA भेज दिए गए। लाहौर सर्कल के 3 अफसरान और एक LDC भी वापसी फहरिस्त में शामिल। आपको बताते चले, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने FIA के अफसरान वापस ले लिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जैन हाशमी से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCA ने एक बड़ा इंतजामी फैसला करते हुए मुख्तलिफ सर्कल पर तैनात FIA के मुतअद्दिद अफसरान और एहलकारों को फौरी तौर पर उनके पेरेंट डिपार्टमेंट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वापस भेज दिया है। ये इकदाम डायरेक्टर जनरल NCCA की मंजूरी से जारी करता ऑफिस ऑर्डर के तहत किया गया है। मैं आपको बताते चलूँ कि जिन अफसरान को भेजा गया है इनमें इंस्पेक्टर अशीर हारून, इंस्पेक्टर राना जहांजेब, इंस्पेक्टर नौमानुल हक, इंस्पेक्टर रिजवान भट्टी, जबकि लाहौर सर्कल से इंस्पेक्टर उस्मान इफ्तिखार, सब इंस्पेक्टर अली रजा, सब इंस्पेक्टर सनाबर रजा और लोअर डिवीजन कलर अल्लाह याद भी शामिल है। और इसमें मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि वापसी के फहरिस्त में उस इंस्पेक्टर का भी नाम शामिल है जिसने सेनेटर फलकनाज के फाइनेंशियल स्केमर से जो रकम थी वो भी रिकवर करवाई थी। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि इस ऑर्डर के तहत जो FIA के अफसरान हैं उनके जाने के बाद जो है वो बहुत से मसाइल का भी यहाँ पर सामना होगा, क्योंकि जो साइबर क्राइम के जो अपने अफसरान हैं वो क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर मुलाजिम है और वो जब से ये मुख्तलिफ एंटी करप्शन के मुकदमात का इंदराज हुआ है उसके बाद से जो है वो अफसरान यहाँ पर काम नहीं कर रहे। जो मुख्तलिफ यहाँ पर दरखास्तें आई हैं जिसमें हरासानी की है, जिसमें फाइनेंशियल क्राइम की है, तो उसके ऊपर जो है अफसरान काम नहीं कर रहे थे। इस वक्त तक ये सिर्फ FIA के अफसरान ही उन दरखास्तों के ऊपर काम कर रहे थे। क्या वो सरकारी सतह के ऊपर लोगों की आ रही है या फिर आम पब्लिक की आ रही हो। तो इससे जो है इनकी वापसी से जो है वो जो ऑपरेशन डिवीजन का जो मामला है वो तासुर का शिकार होगा। जी शुक्रिया जैन हाशमी हमें अपडेट करने के लिए। मजीद आपको बताएंगे, SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद काजी अली रजा का मुख्तलिफ नाकाजात का दौरा, ड्यूटी पर मौजूद अफसरान से मुलाकात और अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, नाकाजात पर इजाफी नफरी और मोबाइल यूनिट्स तैनात कर दिए गए हैं। मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग हर सूरत यकीनी बनाएंगे। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की सूरत में कानून फौरन हरकत में आएगा। आपको बताते चलें, SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद काजी अली रजा का मुख्तलिफ नाकाजात का दौरा, ड्यूटी पर मौजूद अफसरान से मुलाकात और अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, नाकाजात पर इजाफी नफरी और मोबाइल यूनिट्स तैनात कर दिए गए हैं। मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग हर सूरत यकीनी बनाएंगे। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की सूरत में कानून फौरन हरकत में आएगा। और अब आपको बताएंगे, शहर कराची में यतीम और बेसहारा बच्चों की फलाह के लिए काम करने वाली अलमेरा फाउंडेशन की तारुफी और फंड रेजिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेजबान डॉक्टर दानिश अमान की रिहाइश गाह पर होने वाली इस पुरवकार तकरीब में मारूफ कारोबारी शख्सियात और फनकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आपको बताएंगे, कराची में अलमेरा फाउंडेशन की तारुफी और फंड रेजिंग तकरीब शानदार अंदाज में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेजबान डॉक्टर दानिश अमान ने शुरका को फाउंडेशन के अखलास और मकासद से खदमात से आगाह किया। फलाही सरगर्मियों को सराहा। तकरीब के दौरान फाउंडेशन के सदर डॉक्टर महबूबुल्लाह ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और फाउंडेशन के मुस्तकबिल के प्रोग्राम्स और मंसूबों पर रोशनी डाली। तकरीब में शिरकत करने वाले मारूफ फनकारों में शफात अली, हुमायूं सईद और हमजा अली अब्बासी शामिल थे, जिन्होंने अलमीरा फाउंडेशन की खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और इनकी कोशिशों को माशरती भलाई के लिए अहम करार दिया।
اور اب بات کریں گے شہر قائد کے موسم کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں کراچی میں موسم مزید سرد ہونے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں خشک اور خنک تیز ہوائیں چلتی رہیں گی. کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کی پیشن گوئی. خشک سردی کے باعث نزلہ زکام سینے گلے اور دمے کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا. اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.